So students, we have to start from the topic, that is, we have done the topic, this topic, that is small business. We have initiated with this. Now let's start with the topic, that is role of small scale industry in socio-economic development of India. So role of industry in socio-economic role of small scale industry in socio-economic development of India. Let's start with this. So you can understand very well that now Make in India concept by Modi ji and business blaster by the Kejriwal government, Mr. Manish Sisodiya, and lots of, you can say, that is even in UP, Mr. Yogi Adityanath ji ne jo abhi kiya, that is we are having the getting the film city in the Noida and other places. So lots of infrastructural development has been taking place in our country, and along with that, these government is basically encouraging the young youth, I'll say, to start up the project where the concept of getting employment should be getting to now giving employment. So we should create employment instead of the be a part of the employment, means you can create employment. So a development, socio-economic development of India will lead to, that is what, through small scale industry can lead to creation of employment. So employment is you can say see that it's a basic problem of most of the countries, and in the developing countries and underdeveloped countries it is one of the most you can say particular peculiar kind of problem which give rise to other problems also. So employment is important. So small scale industries are the second largest employer of the human resource after agriculture. देखिए हमारे वर्ड एक आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड, राइट? तो एग्रीकल्चर अलाइड का मतलब है समथिंग रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर ओनली. नाउ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो पर्पसली आप देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर से ही निकल के आ रही है, right? Lots of industries are coming in the villages which are basically based on agriculture or agriculture product. For example, that is you can say sugar cane है आपका, उससे sugar cane से चीनी का आ गया है ना, शुगर बनाने के लिए आ गया, आपको गुड़ बनाने का आ गया, उसके अलावा जूट इंडस्ट्री है उससे आपका रस्सी बनाने का आ गया. तो क्लॉथ जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली कॉटन देन सिल्क, दे ऑल आर अगेन गिविंग राइज टू व्हाट, ये बेसिक एग्रीकल्चर से आपको क्या दे रही है, they are giving the raw material to the as a to the those organizations basically who are making the clothes with the silk and the cotton. So these are basically what they are acting as a supporter to these small scale industries. So it has 95% of the industrial unit in the country, and these enterprises are the labor intensive, and the labor intensive available is abundant amount in rural areas of India. देखिए इंडिया में पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है, और इंडिया में लेबर जो है इकोनॉमिकल, आई डोंट यूज द वर्ड चीप हियर बिकॉज चीप का मतलब घटिया है. इंडिया में लेबर घटिया नहीं है, अनस्किल्ड है या स्किल्ड है. तो अनस्किल्ड को लोग चीप कह सकते हैं, बट आई डोंट फील वी शुड यूज द रॉन्ग वर्ड व्हेन वी आर डूइंग द व्हेन वी आर राइटिंग सम टेक्निकल थिंग. तो वी शुड बी यूजिंग दैट इज, अगर स्किल्ड है तो वो इकोनॉमिकल हो सकते हैं, स्किल्ड है तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसका स्किल्ड वर्कफोर्स है तो उसका एक अलग उसको जॉब है, अनस्किल्ड है तो उसके लिए एक अलग जॉब है. तो अबंडेंट लेकिन है हमारे पास, दे आर अबंडेंट इन रूरल एरियाज. अबंडेंट का मतलब है एक भरपूर या भरपूर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो हमारे देश में चल सकती है. कैपिटल इंटेंसिव होने से बेनिफिट ये है कि वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव जो है, we can have the combination of capital and labor intensive, means hybrid of this. We cannot have totally capital intensive because हमारे देश में population ज़्यादा है. How we can give the employment to them is one of the most important you can say problem for our country. So generation of employment के लिए जो है बहुत important है. Second point आता है आपका, that is second point we have is the variety of products. Small scale industry produces an enormous variety of product goods
रेडीमेड गारमेंट्स, स्टेशनरी, सोप, लेदर गुड्स, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। देखिए हमारे जो डेली पर्पस यूज के गुड्स जितने भी हैं उसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो दैट इज बीन मेड बाय द, दैट इज whom by the small scale industries। तो बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे लिए डेली प्रोडक्ट, डेली यूसेज प्रोडक्ट बनाती हैं। सो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो इस इन सब चीजों से क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है जितनी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा होंगी, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उतना ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स लोगों को मिलेगा, एंड जितना ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे और गुड्स प्रोडक्शन होगा, उस पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स विल डिक्रीज, तो वो इकोनॉमिकल भी हमें मिलेगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। So you can see here the share of products from SSI is 45%, small scale industry is 45% of total export from India। देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोपोर्शन, हम कहने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट का हमारा जो है 45% मींस ऑलमोस्ट 50% दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर कंट्री। सो इट अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज and solve the problem of balance of payment। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है बेटा, ये तू गलत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस व्हाटएवर वी एक्सपोर्ट एंड व्हाटएवर वी इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो भी हम करते हैं उसके वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है या फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है एज पर द डॉलर रेट, वो हमारा जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि हमने अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट किया कम। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग इट हियर फॉर यू ऑल, इफ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इंपोर्टिंग लेस, देन हमारा बीओपी क्या होगा, BOP will be positive। And if we are exporting less and importing more, then our BOP will be what, loss, means हमारा लॉस होगा, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा होगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने में भी हमारा एक्सपोर्ट जो हमारा जा रहा है यहाँ से, वो भी हमारा इसमें 45% कंट्रीब्यूशन है। एंड दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही है उसकी जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स है वेरी नॉमिनल है। जब वो नॉमिनल गुड्स उसकी प्राइसिंग होती है, अब वो एक्सपोर्ट हम जब करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी क्वांटम में ली जाती है। आज देखिए चाइना इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज वो नंबर, उनका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना स्ट्रांग है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज वेरी लेस। इतनी कम लागत में बनाते हैं वो लोग कि उसको बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज के साथ एक अच्छा कंपटीशन है। और वो यूएस एंड अदर यूके एंड जर्मनी अदर कंट्रीज, ये जो डेवलप कंट्रीज है उनको बहुत जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक इकोनॉमिक वो है एस्पेक्ट है वो जोड़ा किससे है, द यूनिट्स ऑफ व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग एक्चुअली। तो इंडिया में भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाया हमने, उसके अलावा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है जब हम लोग जो है इसको और प्रोडक्शन करते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट द स्टार्टअप एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इसका एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखिए रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है, देखिए जो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर है, मींस अर्बन एंड द रूरल, इफ यू सी राइट, वन स्टेट टू अदर स्टेट। फॉर एग्जांपल पंजाब इज अ वेरी फ्लरिशिंग स्टेट, बट इफ आई से झारखंड, उसके कंपैरिजन में बहुत उसका जो पर कैपिटा इनकम है पर बहुत काफी कम है। इफ आई से नॉर्थ ईस्ट, वो और भी कम है। तो उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि वहां की सरकार नई डेवलपमेंट चाहती है या वहां के लिए फंडिंग नहीं होती है, बट दिस इज अ वेरी अनइक्वल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो अनइक्वल जो ग्रोथ है, रीजनल डेवलपमेंट है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन सेट एनीवेयर इन द कंट्री एंड दे यूज लोकल रिसोर्सेज, लेस कैपिटल एंड सिंपल टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी सिंपल है, रिसोर्स जो है बहुत कम लग रहा है, लोकल रिसोर्स है उनके पास, जो भी लोकल रिसोर्स है उससे वो चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल दे आर नीडिंग टू स्टार्ट अप द बिजनेस। तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कहीं भी स्टार्टअप करा सकते हैं, चाहे वो डेवलप्ड रीजन है चाहे वो अंडर डेवलप्ड रीजन है, दोनों में स्टार्ट कर सकते हैं। और वो वहां से फिर क्या होगा, जब लोगों को लोग जो है उसके अंदर अपना इनपुट लगाएंगे या अपना they will produce something, definitely that will be promoted। अभी आपने देखा होगा कि ऐड आ रहा था योगी गवर्नमेंट ने दिवाली से पहले कि हम जो भी ट्रेडिशन जो गिफ्ट देना है वो अपने स्टेट का आप दीजिए, अपने राज्य का दीजिए, जिसमें क्या होगा वो वहां के ट्रेडिशनल चीजों को हम प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यूपी की कोई चीज है जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, तो उसको हम साउथ में कोई हमारा फ्रेंड रहता है उसको हम दे सकते हैं।
So that will not only promote our traditional thing, but also motivate the small scale investor to invest in those traditional thing where they can where we can sell those produce to for getting the income for them, and also promoting our traditional that is this to the वर्ल्ड वाइड बेसिकली. तो ये हम लोग कर सकते हैं. तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट उससे हमारा होगा, जो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम डिफरेंट लेवल्स पे सेटअप कराते हैं, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होता है? हाउ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री? देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दैट इज which is acting not against each other but they are with each other. For example, a small scale industry ने कोई चीज प्रोड्यूस की, वो उसका फिनिश प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो रॉ मटेरियल किसके लिए बन सकता है? It can become raw material for the big industries, right? So like small scale industries supply various types of components, spare parts, tools, etc., which are required by the large enterprises. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चाहिए क्या आज के डेट में? सपोज आज के डेट में मानता हूं मैं कि जैसे सपोज कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री में सारा कार का जितना भी पार्ट्स बनता है वो खाली सेम इंडस्ट्री थोड़ा बनाती है, सेम कार कंपनी थोड़ा बनाती है. वो क्या करते हैं, अपने काम को क्या करते हैं, सबलेट कर देते हैं. सबलेट करने का मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को देते हैं कि आप हमारा ये बनाइए. सपोज एक नट बोल्ट ही बनाना है, एक छोटा सा स्क्रू ही बनाना है, तो ये काम किसी एक छोटी कंपनी को दे दिया उन्होंने. दैट स्मॉल कंपनी कैन बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सबलेट कर दिया तो वो क्या करेंगे, वो आपके स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से वो चीज आपको बना के देंगे. तो वंस दे आर गोइंग टू मेक द थिंग्स एज पर योर स्टैंडर्ड, एज पर योर क्वालिटी, देन यू कैन टेक इट एंड दैट इज आल्सो वेरी इकोनॉमिकल. काफी इकोनॉमिकल होगा वो चीज, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एज अ बिग इंडस्ट्री. वो उनसे आप लेके, आपको उसके लिए कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी है, कोई उसके लिए एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देनी है, कोई आपको उसके लिए अलग से पूरा सेटअप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. वो आपको इनबिल्ट मिल रहा है किससे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से. तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी, दे आर द फीडर, एक्चुअली दे आर द सपोर्टर, दे आर द फीडर फॉर यू. तो देन व्हेन दे बिकम द फीडर, तो दे आर एक्टिंग एज व्हाट? दे आर एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आ रहा है उसका एक इफेक्ट क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है. दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर, मींस एक दूसरे के पूरक है वो दोनों. तो स्मॉल इंडस्ट्री को से बड़ी इंडस्ट्री को फीडर के रूप में चीज मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको फीड करेगा, सपोर्ट करेगा, और उससे उसको क्या मिलेगी? अर्निंग मिलेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को. तो वो भी सर्वाइव कर पाएगा अच्छे से, और बड़ी इंडस्ट्री भी फ्लरिश हो पाएगी, क्योंकि उनको पूरा मैकेनिज्म बनाने में अलग अलग अपना खुद का इंडस्ट्री सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है. वो एज पर द स्टैंडर्डाइजेशन सबलेट कर सकते हैं किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट, टूल्स एक्सेट्रा व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Hence they will act as a complementary to the that is large scale industries. तो this इसका जो collaboration है या हमें क्रिएट करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बड़ी इंडस्ट्री के साथ. they normally it has been seen that the big fish eats the small fish. तो कंपटीशन जब होगा तो क्या होगा? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बिकॉज वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी कॉस्टिंग नहीं मीट आउट होगी. तो बड़ी इंडस्ट्री इनको क्यों खा रही है? क्योंकि दे आर कॉम्पिटिटर. बट अगर ये कॉम्पिटिटर ना होके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, मींस फीडर बन जाते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बोथ विल सर्वाइव एंड बोथ विल ग्रो साइमल्टेनियसली. दोनों ही ग्रोथ करेंगे इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखिए इसमें मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल करता हूं, आप लोग भी इस्तेमाल करा करिए, बिकॉज we should use the technical words when we write in the answer. These are the punches which helps a teacher to understand that you understand the language of business studies, language of economics, language of accountancy. तो कॉमर्स का अपना एक लैंग्वेज है, उसको इस्तेमाल करिए. डोंट यूज द लेमन लैंग्वेज. तो इस लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम हो सकता है? लागत कम कब आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तब होगा, दैट इज लेस तब होगा जब हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Do write it down all of you. इसको लिख लीजिए, इसको जरूर याद करिए. So SSI also enjoys the advantage of low cost of production. ये C आएगा यहाँ पे. Low cost स्पेलिंग गलत है. Low cost of production because they use local resources in their product. देखिए local resources की जो availability है, उसके लिए बहुत ज्यादा transportation cost नहीं देना पड़ता हमको.
They don't have to spend too much to first get the resource. उनको जो है रिसोर्स लाने के लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही. All the resources are available at their end only. वो वहीं पे अवेलेबल है जहां पे वो रहते हैं. तो जब वो वहां पे मिल रहा है उनको चीजों को, तो क्या करेंगे, उन चीजों से वो चीज वो डेवलप कर सकते हैं जो चीज वो किसको देना चाहते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज वन आर्म डिस्टेंस. उनको वन आर्म डिस्टेंस पे उनको क्या मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मिल रहा है. तो जो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है लो होगा, क्योंकि जब पर यूनिट कॉस्ट तभी कम आ सकता है जब हम उसके ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करें, और वो जिस क्षेत्र में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आगरा है, तो आगरा में शू इंडस्ट्री है, लेकिन लेदर इज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द कानपुर. कानपुर से लेदर आता है, वहां पे लेदर इंडस्ट्री वहां है, लेकिन शू इंडस्ट्री आगरा में है. तो इसका मतलब क्या, क्यों ऐसा है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री वहां पे लेदर का काम ज्यादा होता है, तो उन्होंने क्या किया, सारा रॉ मटेरियल लेदर बनाने का काम कर लिया. वहां पे उन्होंने शू इंडस्ट्री नहीं खोला. क्यों, क्योंकि वहां पे स्किल्ड मैन फोर्स नहीं थी जो वहां पे शू इंडस्ट्री के हिसाब से काम कर पाती. तो वो उन्होंने क्या किया, स्किल्ड मैन फोर्स कहां पे, आपकी आगरा में है, तो वो उन्होंने क्या किया, वहां से लेदर लिया और यहाँ पे शू बनाना स्टार्ट कर दिया. तो अब ये शिफ्टिंग ऑफ वो करते हैं हम लोग, यहाँ से सारे जो कारीगर है यहाँ से जाएंगे कानपुर में, वो लेदर बनाएंगे, तो वो बड़ा कॉस्टली हो जाता. तो इनपुट उनको अगर मिल रहा है तो उससे आउटपुट जनरेट करना आसान है, एंड इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आएगा, और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे होगा, जिससे कंपटीशन को, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को फाइट करने में हमें आसानी होगी. सो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, because of that they can, because of the local resource availability of the product. Next is quick and timely decision. बेटा नहीं समझ आ रहा है, प्लीज आस्क. या सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि अगर हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 10,000 रुपीज लगाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1,000 पेन्स. रुपीज लगाया हमने कितना, 10,000, हमने 1,000 पेन्स बनाए. तो 1,000 पेन का पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, हाँ 10 रुपीज आएगा. दैट इज 10,000 डिवाइड बाई 1,000 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ₹10 आएगा. एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹10, दैट इज 1 पेन. ठीक है ना. अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा पास, हमने जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि मतलब कॉस्ट ऑफ, हमने 10,000 रुपीज लगा के अगर हमने 1 लाख रुपीज 1 लाख पेन बना दिए तो क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी हमारी. यस, एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई अब बताइए, 1 लाख डिवाइड है 10,000 रुपीज में आपने पहले 1,000 पेन बनाया था, तो 10,000 रुपीज को अगर हम डिवाइड करते थे 1,000 से तो कितना आ गया था, यस 10 रुपीज आ गया था. एक पेन की कीमत हमारी 10 रुपीज की थी. अब हमारा 10,000 रुपीज का में हम कितना बना रहे हैं, वी मेकिंग 1 लाख पेन्स. कितना पड़ेगा हमें बताइए, कैलकुलेट करिए. 1,000. हाँ 1,000 मतलब 1,000 रुपीज का एक पेन पड़ेगा. हाउ इट इज पॉसिबल, 10,000 में आप 1,000 पेन बना रहे थे, आप बना रहे हैं इसमें कहते हैं आप 1 लाख पेन बना रहे हैं. चलो इसको 1 लाख हटा देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी रिमूव दिस 1 लाख. चलिए आपके लिए मैं कर देता हूं इसमें 10,000 पेन, कितना हो गया, नाउ इट विल कॉस्ट हाउ मच, 1 रुपी पर पेन. 1 रुपी पर पेन हो गया. अब आ गया आपको क्लियर. तो अभी ये 1 रुपी ये बहुत कम, 1 लाख करने से बहुत ज्यादा कम हो गया था. तो चलिए 10,000 कर लिया मैंने. तो अगर हम 10,000 रुपीज में 10,000 पेन बनाते हैं तो हमारा ये कॉस्ट हो जाता है 1 रुपी पर पेन हो जाता है. अगर हम 1,000 पेन बना रहे थे तो कितना आ रहा था, 10 रुपी आ रहा था. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी, जब ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है. गॉट इट, गॉट इट बेटा, हेलो.
बच्चे समझ आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ ठीक है। So, and quick and timely decision. Due to small scale size of the organization, quick and timely decisions can be taken without consulting too many people. Yeah, this is very very important. देखिए एक small scale organization में क्या होता है कि you will find not too many people are doing the, you can say, involved in doing the jobs. वहां पे एक ओनर है, एक प्रोपराइटर है, ओनर द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस है, उसके अंडरटेकिंग में कुछ लोग होंगे जो उसके नीचे काम कर रहे होंगे। कुछ जगहों पे तो ये भी नहीं होता है, खाली ओनर ही सारा काम कर रहा होता है और उसके अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, आपका ऑर्गेनाइजिंग का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब क्या होता है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होते हैं। वहां पे बड़े बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं क्योंकि वहां नंबर ऑफ पीपल हु आर फंक्शनिंग आर बेसिकली वेरी लार्ज। तो वहां पे जब बड़े बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसको ध्यान रखते हुए आपको डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत डिपार्टमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। तो द पर्सन हु इज बेसिकली द प्रोपराइटर और हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द वर्क, वही उसका मैनेजर है, वही उसका सब कुछ देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, सेल्स भी देख रहा है। तो क्या करेगा वो, डिसीजन क्या कर सकता है, द एज व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो तुरंत डिसीजन ले लेता है और तुरंत डिसीजन लेके उससे क्या कर सकता है वो अदर वे अराउंड, मतलब वी कैन मेक अ 180 डिग्री चेंज इन द वे ही इज डूइंग द वर्क। तो बहुत फास्ट वो ट्रैक में वो क्या कर सकता है, he can bring that change and that change will help to bring the profitability to his their organization। वो जितनी जल्दी चेंज ले आएगा, जितनी जल्दी वो फास्ट डिसीजन लेगा, उतना अच्छा उसको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये क्विक एंड टाइमली डिसीजन से क्या होता है, ये हेल्प करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फ्यूचर। और ये तभी हो सकता है जब आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि ये जहाँ पे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, जहाँ पे यू हैव टू गेट द डिफरेंट हायरकी, लोगों से आपको जो है डिस्कशन करना है, फिर उस पे जो है मीटिंग होने के बाद उसके बाद बजट असाइन होगा, बजट असाइन के बाद फिर वो जो चीजें होंगी कि करना है कि नहीं करना है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर जो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट इज 8th, development of entrepreneurship. SSI provides the opportunity for young men and women to start their own business। देखिए बिजनेस को, एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है दैट इज कैपिटल, दैट इज मॉनेटरी एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो विजन बहुत लोगों के पास है, विजन भी बहुत लोगों के पास है, आइडियाज बिजनेस के बहुत लोगों के पास है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट लगने की वजह से हम बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हमें रिस्क लेने में हमें दिक्कत होगी, तो हम नहीं ले पाएंगे रिस्क को। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर ड्रीम्स। तो ऐसे में अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे एसएसआई कह रहा है या एमएसएमई जो है इनको प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए सपोर्ट करती है, स्मॉल फंडिंग, तो छोटे छोटे फंडिंग से अगर उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो उनका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होगा, तो वो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टैंड दे सकते हैं, सर्वाइव कराएंगे, फिर सर्वाइव करने के बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ लाएंगे, ग्रोथ के बाद वो डेवलपमेंट होगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब लोग इंकरेज होते हैं फॉर पुटिंग द स्मॉल विद स्टार्टिंग बिजनेस विद स्मॉल फंड्स। तो एसएसआई प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, यंगस्टर्स को, दैट इज यंग एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या वुमेन्स को भी आज के डेट पे, कि आप जो है बिजनेस स्टार्ट करिए विद द ग्रुप ऑफ द पीपल, यू कैन स्टार्ट अप अ बिजनेस एज पर योर लोकल एरियाज। अपने लोकल एरिया में जो आपको चीज अच्छी मिल रही है आप लीजिए और करिए उससे। द लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल इन फतेहपुर सीकरी, वहां का जो जगह है वो वहां के लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छा है, प्लस वहां दरिया बहुत अच्छी बनती हैं, तो वो लोग दरी बनाते हैं, वहां का वो कट्स लाते हैं, और जो कपड़ों के जो कट्स होते हैं उससे जो है क्या बनाते हैं, वो दरिया बनाते हैं, और वो वहां से एक्सपोर्ट होती है। तो वहां के छोटे छोटे, छोटा सा कस्बा है, बट वहां के छोटे से कस्बे में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, क्योंकि दे आर गुड विद दैट काइंड ऑफ जॉब, वो स्किल्ड है उस काम को करने के लिए, वहां पे पर यूनिट कॉस्ट कम आता है इसके लिए। एंड एवरी हाउस यू विल फाइंड द पीपल आर डूइंग, रॉ मटेरियल ओनर के यहाँ से लेके आ जाएंगे, और वो उन्होंने अपने घर लाके, घर में 3-4 लोग बैठ जाएंगे, लेडीज बैठ जाएंगी, उनके साथ में जो है कुछ जेंट्स भी बैठ जाते हैं, और फटाफट फटाफट पर यूनिट पर डे उनको जो है वो 3-4-5-10 दरिया बना के भेज दे देते हैं ओनर को, और पर हेड जो है वो 3 लोग 4 लोग जो है 1500 रुपए 2000 रुपए वो कमा लेते हैं पर डे। तो ये क्या हुआ, इससे उनकी जो इनकम फोर्स है वो बढ़ जाती है, सोर्स बढ़ जाती है, उनको कहीं जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो वहां से लेके आ जाते हैं सामान, रॉ मटेरियल, अपने घर बैठ के बना लेते हैं।
तो ये जो चीज है उससे क्या पर यूनिट कॉस्ट कम हुई हमारी, और ये सब चीजें जो है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां छोटा इन्वेस्टमेंट लगेगा वहां पे एंटरप्राइजिंग करना आसान है, जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहां फंडिंग चाहिए, जहां वेंचर कैपिटल चाहिए, जहां बैंक चाहिए, वहां पे दिक्कत आती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ सेल्फ फंडिंग से स्टार्ट हो सकता है, या है कुछ फैमिली फ्रेंड से बिजनेस पैसा लेके स्टार्ट हो सकता है, तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली टू स्टार्ट फ्रॉम द गेटिंग द फंड फ्रॉम द सम एजेंसीज। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आगे बच्चे नहीं आए सबको, अंडरस्टूड क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. ठीक है, I am stopping right now here, and you are going to rejoin again, such that we can go for the next topic. All of you rejoin me, please.